اور ایک اور بات کرتا چلا جاؤں، کچھ باہر بھی ایک آدھ بھائی ہیں، اندر بھی ہیں، میں ریکویسٹ کروں گا کہ بائبل مقدس کے مطابق جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم ضرور ہے کہ اپنے جو سر ہے اسپیشلی مرد اور دعا کے ٹائم وہ اپنے سروں کو نہ ڈھانکیں، مطلب اگر چند ایک دو بھائیوں نے کیپ پہنی ہے، میں ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے ضرور، باہر بھی ایک آدھ بھائی ہیں، شکریہ بھائیوں، خدا آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کے ساتھ ہو، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ بائبل مقدس میں یہ بھی ایک تعلیم ہے، لیکن میں زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ بھی ایک لینتھی جو ہے نا ایک لیکچر ہے، ایک میسج ہے، اور لکھا ہے کہ جو خدا کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرتے ہوئے مرد جو ہے اور وہ اپنے سر کو نہ ڈھانکے جو دعا کے ٹائم۔ اور آئیے ہم بائبل مقدس کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جو خدا نے آج مجھے اور آپ لوگوں کو بخشا ہے، اس پر ہم غور کریں۔ فلپی کے نام پالوس رسول کا جو خط ہے، خدا کا جو سورما، خدا کا بڑا جشیدہ خادم جس کا نام پالوس رسول ہے اور جس نے بڑی درد مندی کے ساتھ اور جس نے بڑی وفاداری کے ساتھ، بڑی جانفشانی کے ساتھ اپنی زندگی میں ہمیشہ خداوند کے نام کو جلال دیا اور اس کی خدمت اس زور سے کی کہ وہ بیٹھے اور خدا اس کی زندگی میں بڑھتا ہوا نظر آئے۔ آمین۔ اور اس نے اس طرح سے خدمت کی کہ بہت سارے لوگوں کو جو گناہوں میں جکڑے ہوئے، جھوٹی تعلیم میں اور بہت ساری ایسی باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں جو کلام مقدس سے بالکل ہٹ کر ہیں، اور اس نے تعلیم دے کر بحث کرتے ہوئے ہر لحاظ سے عملی طور پر بھی ان کی رہنمائی کی اور بہت ساری کلیسیوں کو قائم کیا۔ اور آج یہ خط کا یہ ایک حصہ، ایک آیت اس بھارت کی کلیسیا کو بھی مضبوط، پائیدار، مخلص ہونے کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ اس میں، اس آیت میں جو خدا نے آج مجھے اور آپ لوگوں کو، میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے بچوں کو، میرے بزرگوں کو، میرے ہم خدمت ساتھیوں کو آج ایمان کی پختگی کے لیے، مضبوطی کے لیے جو مضمون دیا ہے وہ یہ ہے حقیقی مختون۔ حقیقی مختون۔ پہلے میں مختون کو تھوڑی دیر کے لیے پیش کروں گا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مختون کیا ہے۔ مختون کی جگہ پختون نہ بنا دیں، یہ مختون ہے، ٹھیک ہے؟ اور مختون کیا ہے؟ مختون کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، غور سے سنیں گا۔ پرانے عہد نامہ میں مختون اور غیر مختون کافی جگہوں پر اس کا ذکر ہوا ہے۔ مختون، ابھی دھیان سے سنیں گا، میں سوال کروں تو پلیز ضرور بعد میں جواب مجھے ملنا چاہیے، اور بعد میں اگر وزٹ میں بھی پوچھو کہ مختون کا کیا مطلب ہے تو اس دوران بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مختون کیا چیز ہے۔ مختون پرانے عہد نامہ کے مطابق وہ ہے جس کا ختنہ ہوا تھا وہ مختون، اور جس کا ختنہ نہیں ہوا وہ نامختون۔ گویا کہ پرانے عہد نامہ کی کلیسیا میں جس کا ختنہ ہوا وہ ایماندار اور جس کا ختنہ نہیں ہوا وہ غیر ایماندار۔ اسی طرح آج کی کلیسیا میں مختون وہ ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، جس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخص نجات دہندہ قبول کیا ہے اور اپنا دل، اپنا تن من دن خداوند یسوع مسیح کو دے کر اور ایک ایمانداری کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ کلام مقدس کے مطابق وہ مختون ہے۔ جس نے بپتسمہ لیا وہ مختون ہے، جس نے اپنا آپ خدا کو نہیں دیا وہ نہ مختون ہے، وہ غیر مختون ہے۔
मखतून की समझ आई थोड़ी देर के लिए? सब समझ के मखतून क्या चीज है? तो फिर आज की कलीसिया में हम किसको मखतून कहते हैं? ईमानदार को। ठीक है। और यहां पर सिर्फ जो एक छोटा मजमून है वो सिर्फ मखतून ही नहीं बल्कि पीछे एक और लफ्ज खुदा ने मुझे दिया, हकीकी मखतून। कैसा मखतून? हकीकी मखतून। क्योंकि बहुत सारे आज भी अगर पुराने अहद में देखें, यहूदियों में देखें, और उस वक्त भी बहुत से लोग नाम के मखतून थे, हकीकी मखतून नहीं थे। आज भी कलीसियाओं में बहुत सारे लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को तो कबूल कर लिया, लेकिन वो हकीकी मखतून नहीं है और उनकी जिंदगी गैर मखतूनों जैसी गुजर रही है। वो किस तरह से? आज हम 3 खासूसियात देखेंगे कि एक हकीकी मखतून जो है और उसमें कौन सी 3 इस आयत के मुताबिक कौन सी खासूसियात होनी चाहिए। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है प्लीज वो जरूर खोल कर रखिएगा। इसी आयत में 3 खासूसियात पाई जाती है। बाहर इधर उधर नहीं जाएंगे, इसी आयत के अंदर हम देखेंगे। इसी आयत के अंदर 3 खासूसियात कौन सी है कि जो पौलुस रसूल कलीसिया की रहनुमाई कर रहा है, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े हुए थे और बहुत सारे लोग झूठी तालीम का शिकार हो रहे थे। मत समझे कि उस वक्त ऐसा था, आज भी ऐसा है। आज भी हमारे ईमान पर बहुत ज्यादा अटैक हो रहे हैं, जगह जगह अटैक हो रहे हैं, कलाम मुकद्दस पर अटैक हो रहे हैं, मसीही ईमान पर हमला किया जा रहा है। और उन तमाम अटैक से बचने के लिए हर मसीही को जरूरी है कि वो पहले अपने आप को मजबूत करे, वो पहले अपने बारे में देखे और उसे हकीकी मखतून होने की जरूरत है। वरना अगर वो हकीकी मखतून नहीं है तो वो फिर डामाडोल हो जाएगा और बहुत सारी बिदात का वो शिकार हो जाएगा, बहुत सारी गलत तालीम का शिकार हो जाएगा और अपने आप को, अपने खानदान को, कलीसिया को बर्बाद कर डालेगा। भाइयों बहनों, गौर से सुनिएगा कि ये कौन सी खसूसियात एक हकीकी मसीही में होनी चाहिए, यानी कि एक हकीकी मखतून में क्या खसूसियात होनी चाहिए। पहली हम खसूसियत देखते हैं, इस हिस्से में लिखा है वाज़ेह तौर पर, क्योंकि मखतून तो हम हैं। मखतून तो कौन कहता है? पौलुस रसूल। और बड़े वाज़ेह तौर पर दलेरी के साथ कहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज का इजहार कर रहे हैं। उस वक्त भी बहुत से लोग इस चीज का इजहार करते हैं कि जिसका खत्मा हुआ वो मखतून है, जिसका खत्मा नहीं हुआ वो नामखतून है। लेकिन वो कहता है मखतून तो हम है। वो कैसे? वो 3 खसूसियात पेश करता है। जो खुदा के रूह की हदायत से इबादत करते हैं। पहली खसूसियत यह है कि खुदा की रूह की हदायत के मुताबिक इबादत करना। हकीकी मखतून खुदा के रूह की हदायत से इबादत करता है। ये पहली खसूसियात में से खसूसियत है, पहली खूबी है कि अगर कोई ये कहता है कि मैं मसीही हूं, मैं मखतून हूं, और आज इस कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो जरूर अपने आप को टटोले, जरूर अपनी जिंदगी पर गौर करे। अगर तो मैं खुदा के रूह की हदायत से इबादत कर रहा हूं, कर रही हूं, इसका मतलब है मैं हकीकी मखतून हूं। खुदा की रूह की हदायत से इबादत कैसे करना? पहली बात यह है, लास्ट में भी हमने ये सीखा था कि रूह से मामूर होना, कि रूह तभी है जब हम ईमानदार हैं। तो जब ईमानदार हैं तो रूह हमारे अंदर है, फिर हमें जरूरत है कि उस पाक रूह को मौका दें कि हम उसकी ताबेदारी में होते हुए उसकी बंदगी करें। हम जो प्रस्तुत करते हैं, हम जो सांस बजाते हैं, हम जो हम तो सना करते हैं, सारी की सारी सताइश हम तो सना मुकम्मल तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर में अंडेलना, रूह से इबादत करना है।
खुदा के रूह की हदायत के मुताबिक कि जिस तरह खुदा का पाक रूह हमें गाइड करता है। और मैं ये बताना चाहता, प्लीज बेटे, मैंने शायद आपने नहीं सुना था, इबादत में अपनी कैप उतार दें, भाई की मदद करेगा, फिर भी नहीं सुना तो बाहर एक भाई है। अच्छा, सुनिएगा कि जो खुदा की रूह की हदायत से इबादत करना और वो मखदूम कह रहे, वो उनके अंदर ये खूबी है। किस तरह से कि जब मैं और आप लोग खुदावंद की हजूरी में आ जाते हैं, उस वक्त इबादत में ये मत देखें कौन कैसे बजाता है, कौन कैसे गाता है, गाने में मुंह का साइल क्या बनता है, क्या हो रहा है, मत नहीं। आंखें बंद करते हुए उसकी जब प्रस्तुत करते हैं, इस ईमान से कि हम खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। इस तरह से हम इबादत ना करें, इस तरह से कलाम पेश ना करें, इस तरह से हम ना गाएं बजाएं कि मुझे बाद में लोग कहें शाबाश, तो मैं सबको पहले लड़ो और ज्यादा और जमा पहले ज्यादा। लेकिन हरगिज़ इस तरह से, इस मकसद के साथ हम नहीं करते, इस मकसद से हम इबादत नहीं करते, हम दुआ इस तरह से नहीं करते कि लोग सुने, लोग मुझसे मुतासर हो जाएं। हम जब इबादत करते हैं तो लोगों के लिए नहीं करते, हम जब इबादत करते हैं तो लोगों को मुतासर करने के लिए नहीं करते। हम जब भी उसके लोग, उसकी बेटियां, उसके बेटे जब इबादत करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि मेरा खुदा लुत्फ अंदोज हो, मेरा खुदा खुश हो जाए और उसका आसमान मेरी नेमतों बरकतों के लिए खुल जाए। आमीन, आमीन। तो हकीकत में एक जो मखतून शख्स है, और अगर वो हकीकी मखतून है, तो फिर उसके अंदर ये खूबी होती है कि जैसे वो खुदा के घर से निकलता है, वो ये नहीं, उसे को किसी बात से सरोकार नहीं है। फिर ये नहीं है कि मैं कुर्सी पर बैठा हूं या नीचे बैठा हूं। सुनिएगा, इस पर फिर उसे इस चीज का कोई सरोकार नहीं है, कोई सरोकार नहीं है कि मुझे जो है कि आगे से पीछे कर दिया, पीछे से आगे कर दिया, नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरा खुदा जंगल में भी वही है, यहाँ पर भी है, छत पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, पीछे बाहर जो बैठे वहां पर भी खुदा है, यहाँ पर भी खुदा है, क्योंकि वो लामहदूद खुदा है। आमीन। इसलिए हर ईमानदार अपने अंदर इस बात को कसरत के साथ बैठा ले। कोई भी नौजवान बेटा बेटी जब खुदा की बंदगी करे, मेरा ईमानदार भाई, मेरे हम खिदमत साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज किसी भी चर्च में जाए या घर में इबादत करें, तो सिर्फ एक ही चीज सामने हो कि मेरा खुदा मुझसे खुश हो जाए। और ये तभी होगा जब हम खुदा के पाक रूह की हिदायत से हम इबादत करेंगे, क्योंकि उस दौरान हम अपने आप को खाली कर देंगे। जब हम खुदा के पाक रूह की हिदायत से बंदगी करेंगे, उस दौरान हमारे अंदर खुदी जो है वो खत्म हो जाएगी। जब हम रूह की हिदायत से इबादत करेंगे, फिर हम सबके साथ मोहब्बत के साथ पेश आते हुए बंदगी करेंगे। हम एक दूसरे के लिए बरकत चाहेंगे, हम एक दूसरे के लिए पुख्तगी का बायस बनते चले जाएंगे, और हमारा दिल खुदा के जलाल से मुनव्वर होता चला जाएगा और उसकी सताइश होती रहेगी। मेरी बात को समझ रहे हैं सब? मैं शुक्रगुजार हूं, तो देख रहा हूं कि काफी लोग ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी तो भी चंद एक दो ऐसे चेहरे हैं जो शायद दाएं बाएं उनकी सोचे जा रही हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज, ये टाइम बार बार नहीं मिलेगा, ये वक्त बार बार नहीं मिलेगा। आज की डेट आज ही की डेट है, इसलिए ये लम्हात आज ही के लम्हात हैं। इसलिए ध्यान से और गौर से सुनेगा। एक हकीकी मखतून के अंदर पहली खूबी क्या है? खुदा की रूह हिदायत के मुताबिक इबादत करता है, खुदा के रूह की हिदायत के मुताबिक इबादत करना। और ये भी है कि खुदा के पाक रूह की हिदायत से ये भी है कि उसकी बंदगी करनी है तो टाइम पर भी आना है। ठीक है, खुदा के कलाम मुक़द्दस में ये भी हिदायत है। और हमें खुद जो बंदगी करनी है तो पूरी बंदगी करनी है, इबादत करनी है तो आधी इबादत नहीं करनी,
برکت ہم پوری چاہتے ہیں، برکت ہم پوری چاہتے ہیں، لیکن عبادت ہم آدھی کرتے ہیں۔ اس لیے مسیحوں، اس لیے کلیسیا غور کریں، ابھی تک ہم بہت پیچھے ہیں۔ پتا چلے میں نے توبہ کیے ہوئے کتنے سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، لیکن عادت آئیے تک بھی نہیں بدلی، جانا میں چرچ آخر تک ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ نہیں کہ ابھی جو لوگ ہیں میں انہیں کو صرف سنا رہا ہوں، کلام سب کے لیے ہے۔ کوئی یہ نہ کہیں آج تے میرے تے کلام سارا پاج صاحب نے لگایا ہے، یہ میں اس مضمون کے مطابق میں وسیلے سے ہو کر بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے تو اس کا مطلب وہ لے لے، خدا تیرا شکر تو نے مجھ سے کلام کیا ہے اور میں آئندہ سے میں اس کلام کو قبول کروں گا، یہ مثبت بات ہے، منفی بات نہ لے بلکہ مثبت لے اگر آپ مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو اس لیے جو مختون ہے، حقیقی مختون، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ خدا کے روح کی ہدایت کے مطابق اس کی عبادت کرتے ہیں اور خوشی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ میں خوش ہوا جدو منو کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں تو بولتے چلا ہاں اے منو کتنے مل گیا، چلو آؤ جی چرچ چلیے، اے چنگا منو ٹکر گیا، میرا تو سارا پلان ہی خراب کر دیتا پائی شریف نے، چنگا بڑا مہر چلا پائی شریف کے نام آج تمہیں چرچ لے کے چلیے، ٹھیک ہے۔ لیکن خوشی کی بات ہے اگر بھائی شریف کسی کہ آؤ خدا کے گھر چلے تو کہے او شکریہ بھائی جان، آپ نے مجھے دعوت دی، میں خوش ہو گیا ہوں، اور کہ آپ نے مجھے دعوت دی کہ خدا کے گھر میں ہم چلے۔ تو اس لیے اس میں سے جو حقیقی مختون ہے اور پہلی خوبی اس کے اندر، پہلی خصوصیات میں سے خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کی روح کی ہدایت کے مطابق عبادت کرتی ہے اور کرتا ہے۔ آمین۔ آگے بڑھے ہم، یہ پہلا پوائنٹ کلیئر ہے؟ تھینک یو۔ ایسے میرے ساتھ رہیے تاکہ مجھے بھی پتا چلے۔ دوسرا اسی آیت میں پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اندر ایک خوبی ہونی چاہیے، دوسری خوبی ہونی چاہیے، لیکن اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں، مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں۔ ایک مسیحی بیٹا بیٹی جو ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑی یہ بھی خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی خوبصورتی پر فخر نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ اپنے کپڑوں پر فخر نہ کرے، ٹھیک ہے۔ پہلی عید میں تے کوٹ پایا، میں بھی پایا، لیکن ٹائی نہیں لائی، میں ٹائی لائی ہے، میں اپنی ٹائی پہ فخر نہ کرا، ٹھیک ہے، میں اور چیزوں پر فخر نہ کرا، میں فخر کروں تو خداوند یسوع مسیح پر فخر کروں جس نے مجھے اس مذہب پر بٹھایا ہے۔ اس یسوع پر ہمارا فخر ہونا چاہیے کہ جس نے اپنی جان کو قربان کر کے فدیہ دے کر ہمیں غرے سے اٹھایا، ناچیزوں کو، بے وجودوں کو وجود دے کر شاہی کانوں کے فرقہ میں داخل کر دیا اور خدا کے بیٹے بیٹیاں بنا دیا۔ فخر ہے تو یسوع مسیح پر فخر ہے جس نے آج ہمیں شہزادے اور شہزادیاں بنا دیا۔ ہمارا فخر افسوس یہ ہے کہ آج ہم دنیاوی طور پر باتوں پر چیزوں پر فخر کرتے رہتے ہیں، اور ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے اچھے کپڑے نہ پہنے، یہ نہ کریں وہ نہ کریں، اچھے کپڑے پہنے، خوبصورت نظر آئے، لیکن ان چیزوں کو آپ خداوند یسوع مسیح کی جگہ پر کھڑا نہ کر دیں۔ مت فخر کریں اچھا ٹھیک ہے جی ان کا چرچ تو ایسا ہے کہ صرف نیچے لوگ بیٹھتے ہیں، ہمارا چرچ جس جگہ پر ہم جاتے ہیں اور بتاؤ بینچز لگے ہوئے ہیں، وی آئی پی، کون سے؟ وی آئی پی، ٹھیک ہے، لیکن بعد انہوں نے پوچھے جان اچھا جی سکھ کے کیا ہے، یار نیند ہی بڑی آ گئی سی، کلام دے دوران کی آ گئی سی، نیند ہی بڑی آ گئی سی۔ وہ فخر کس پر ہے؟ وہ صرف چیزوں پر فخر ہے، ٹھیک ہے، ظاہری چیزوں پر فخر ہے۔ انہوں نے پال جی صرف پینٹ کوٹ پالا، ساڑھے پال صاحب جو نے کہ وہ واہ واہ جی ایڈی بڑی سلیب گلے چلتی ہے، لیکن وہ شاید گلے ہی نظر آتی ہے لیکن اندر نہیں۔ معذرت کے ساتھ میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو کئی دفعہ ہم یسوع کی جگہ پر ان چیزوں کو لے لیتے ہیں اور ان چیزوں پر فخر کرتے ہیں، لیکن ایک مسیحی کا فخر اپنی دولت پر نہیں ہے،
एक मसीह का फखर अपने मैसेज पर नहीं है कि मैं अच्छा मैसेज देता हूँ, एक मसीह का फखर मैं अच्छी प्रस्तुत करता हूँ, अच्छा बजाता हूँ और अच्छे मैनेजमेंट कर लेता हूँ और मेरे घर में बहुत कुछ लोग आते जाते रहते हैं और ये मेरा बड़ा फखर। इन चीजों पर फखर ना करें, ये खत्म हो जाने वाली है। फखर करें तो जो हमेशा रहने वाली हस्ती है उस पर फखर करें, जो यीशु अल मसीह है, जो हमेशा कायम रहने वाला है। और एक हकीकी मखतून का फखर किस पर होता है? अगर एक शख्स यीशु मसीह पर फखर नहीं करता, इसका मतलब है वो हकीकी मखतून नहीं है। इसलिए पौलुस रसूल उन लोगों को कहता है, हाँ हम खुदा की रूह की हदायत के मुताबिक इबादत करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और वो खुश हो जाता है और उसका तख्त कायम हो जाता है। हाँ हम खुदावन के हुजूर फखर करते हैं, लेकिन कहता मैं अपनी जबानों पर फखर नहीं करता, मैं अपनी खूबियों पर फखर नहीं करता, मैं फखर करता हूं तो यीशु मसीह पर फखर करता जिसने मुझे कहां से कहां बैठा दिया और कहां वो ले आया। इसलिए उसे जलाल, उसकी सताइश है। आज मैं अपने अजीजों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आज ऐसी कलीसिया जो खुदा पसंद करता है, हकीकी मखतूनों को पसंद करता है और उनको अपने तख्त पर बैठाना चाहता है, अपने पास लेकर जाना चाहता है, तो उसके लिए अपने अंदर देखें कि मेरे अंदर ये खूबी है। कौन सी भला? यीशु मसीह पर फख्र करना। हाँ जी हमारा फख्र है तो किस पर है? बहुत कम आवाज है, चल एक तो बेचों पे थोड़े पता नहीं की क्या है पास साहब ने और ये होनी नहीं दसा, पता नहीं क्या है पास साहब ने। ठीक है, अभी अगर आप याद नहीं रखेंगे तो बाद में कहाँ याद रखेंगे, लेकिन अभी मैं उतनी देर तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को याद नहीं होंगे। किसी से भी मैं पूछ सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा। भी पहला पॉइंट क्या है? खुदावंद की रूह की हदायत के मुताबिक इबादत करना। दूसरा पॉइंट क्या है? मसीह यीशु पर फख्र करना। मसीह यीशु पर फख्र करना। ठीक है, और ये फिर कह सकते हैं पहला पॉइंट है हकीकी मखतून खुदा के रूह की हदायत के मुताबिक इबादत करते हैं, और दूसरा पॉइंट है हकीकी मखतून यीशु मसीह पर फख्र करते हैं। और फख्र चाहे वो पाकिस्तान में है तो चाहे वो अमेरिका में है, यीशु तो सब कुछ हर जगह पर मौजूद है, तो उस पर फख्र हर जगह पर रहते हुए हमारा फख्र है। आमीन आमीन। तो तीसरा पॉइंट इसमें इसी आयत में से हम सीखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? एक हकीकी मखतून की खूबी क्या है और उस पर गौर करें। अगर लिखा है और मसीह यीशु पर फख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते, जिस्म का भरोसा नहीं करते, क्योंकि ये भी खत्म हो जाने वाला है। इस पर भी भरोसा नहीं करते, इसलिए कि उस दौरान बहुत सारे ग्रुप ऐसे थे कि वो इसी पर फख्र करते थे, ऐसा ही नहीं, ये करता नहीं है, ये मखतून नहीं है, ये फलां है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन पता नहीं उनका दिल कितना ज्यादा खुदावंद विच मगन है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आज सिर्फ जिस्म का खतना नहीं बल्कि दिल का खतना लिखा है। हमारा दिल तब्दील होना चाहिए। जिस्म कभी भी ठंड की वजह से भी बीमार हो सकता है, लेकिन रूह हमारी बीमार ना हो। जिस्म कभी भी आते जाते हमें इस पर चोट लग सकती है और कभी भी हम कमजोर पड़ सकते हैं। आप देखें कभी आज अगर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं कुछ लोग, तो जब वो जवान थे और वो किसी चीज को वो समझते कुछ नहीं थे, ठीक है, ये चीज पकड़ी वो पकड़ी, आज वो थोड़े कमजोर हो गए हैं। जिस्म है ना, मैंने भी कमजोर होना है, आप लोगों ने भी कमजोर होना है। ये कि जिस्म है, इस पर भरोसा ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस जिस्म को लेते हुए, इस पर भरोसा करते हुए निजात हासिल करते हैं। बहुत से लोग इस जिस्म को लेते हुए शायद इसी में हमारे निजात है कि कोनियों के बल कई किलोमीटर जो है वो चलना है, कोनियों के बल जख्मी हो जाते हैं, निजात इसी में है। शायद आगे जाकर फिर थोड़ा आगे चले गए, नाल हम लोग को उठवा है ना जरा, ठीक है, शायद बोतल उन्होंने नाल रखी दूसरे फायदे को जब बैग चल, लेकिन कोनियों के बल जाना है। शायद खुदा देखे कि ये कोनियों के बल जाते हुए और मेरी रियाजत हो जाएगी और मैं बख्शा जाऊंगा। हरगिज़ वो ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे।
जिस्म पर भरोसा नहीं, रूह पर भरोसा करें। वो कहता है कि हम जिस्म पर भरोसा नहीं करते, जिस्म कभी भी खत्म हो जाएगा, आज है कल है, लेकिन रूह हमेशा कायम रहेगी। आमीन। इसलिए जो हकीकी मखतून है वो जिस्म पर भरोसा नहीं करते। बेशक जिस्म खुदा की एक बख्शिश है, ये बरकत है, इसका ख्याल करना है, इसे साफ सुथरा रखना है और इसे खिलाना पिलाना है, लेकिन इससे निजात नहीं, निजात है तो रूह से निजात है। इसलिए पौलुस रसूल उनको जोर देता है कि आप जिस्मानी तौर पर जिस्म पर ही भरोसा न रखें कि जिस्म आपको बचा लेगा। आप जिस्म के सबब से मखतून है, नहीं, मखतून है तो ईमान से मखतून है, ईमान से मखतून है। आपका हकीकी ईमान है, आप हकीकी मखतून है। अगर आपका हकीकी ईमान नहीं है उस पर, आप हकीकी मखतून नहीं है। इसलिए एक हकीकी मखतून के अंदर ये तीसरी खूबी का होना भी जरूर है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मर्द हज़रात अभी खामोश है, ये ग्रुप भी खामोश है, पीछे वाला ग्रुप मुझे बताएगा ये अभी तीसरा ग्रुप, ये तीसरा जो पॉइंट हमने क्या हमने सीखा है, जिस पर भरोसा नहीं करना। हाँ जी, ए बच्चे दसम के पहला पॉइंट केड़ा है? चलो थोड़े जे और पीछे ला जाना जी। खुदावंद की रूह की हदायत के मुताबिक इबादत करना। हाँ जी, खुदा के रूह की हदायत से, जैसे खुदा का पाक रूह बयान करे वैसे इबादत करना, दिखावे की इबादत न करना। और नंबर 2, पीछे अभी आप खामोश रहेंगे जी, पीछे आए। फख्र करना है तो किस पर? यीशु मसीह पर फख्र करना है जो जिंदा है, आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, और जो कुदरत वाला है, हशमत वाला, जो हमारी शिफायत करता है, सिर्फ हमारा फख्र है तो उस पर फख्र है। आमीन। तो फिर तीसरा पॉइंट, हाँ जी, जिस्म पर भरोसा नहीं करना। ठीक है, तो ये पौलुस रसूल ने एक ही आयत में बड़ा लेंथी लेक्चर दे दिया है, अगर समझने वाले हो तो। ठीक है, बेशक इसमें और भी काफी हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन थोड़े टाइम में अगर हम ध्यान से इन चीजों को ले लें तो बहुत ज्यादा बरकत हम रिसीव करेंगे। आमीन। थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, आंखें बंद करें और हर बेटी हर बेटा अपनी जिंदगी पर गौर करें।